you so much for one of the best intros I've ever got. Kaleji, pote, nehariyan, biryani pie. I don't think I've ever ऐसा कोई intro आया होगा किसी TED Talk में. So thank you so much for that. मेरी शक्ल पहले किसी ने देखी है? Wow. Thank you so much. अच्छा, for those who don't know me, मैं अपने Instagram के ऊपर with the handle Ali Rahman खाना पीना पोस्ट करता रहता हूँ. And one of the comments that I always get is कि यार नान चने के अलावा भी खाने हैं, प्लीज़ खुदा के लिए कुछ और खा लो. तो मैं उनको कहता हूँ हम लाहौरी हैं, हम नान चना ऑब्सेस्ड हैं. तो पहला तो मैसेज उन लोगों के लिए है कि उन्हीं नान चने ने मुझे TEDx किस प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा किया आज. तो थैंक यू सो मच नान चने, थैंक यू सो मच TED Talk. So नान चने रॉक. So that's the one thing. Number two is कि a lot of people know me from Instagram. And I never talk about my other side of the life that I also live. That's a parallel life. So I am an Instagram person who eats out और खाने शाने post करता रहता है. Again, I'm working in education industry. Not everyone knows that. So I'm associated with a multinational education group with the name of Navitas. So Navitas is a multinational group. It has colleges, universities all over the world: Australia, UK, US, Canada, New Zealand, Netherlands, Germany, Singapore, Dubai, and we are opening 2 centers in France. So I'm the regional director for Pakistan for the last 15 years. Usse pehle I was with the University of Hertfordshire, UK. As their country manager, I was with the British Council for 4 years. So I've been around in the industry for the last 2 decades now. और ये बाल मैंने इस इंडस्ट्री में चिट्टे किए हैं. So that's one thing. Number two, a very interesting stat that I was looking at. इसके लिए ना मैं एक प्रेप करने के लिए मैंने कहा गूगल पे जाके थोड़ी वर्किंग करते हैं. वो काफ़ी डिप्रेसिंग से स्टैट्स सामने आ गए. मैंने लिखा कि व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर. सॉरी. तो गूगल का ख्याल है कि 20-22 साल होती है. So I'm exactly double the age. I'm turning 44 in 2 months. So सिर्फ 22 साल लेट हूँ मैं to become a social media influencer. But thanks to all of you who follow me and who give me the feedback and all. And it's such a lovely intro. Great. So thank you so much for the clap. जो भी ताली बजा रहा था. अच्छा जी, हम जो शुरू करेंगे we'll be talking about the radical reframe. Or before we formally jump into it, I want to show you a few things on the screen. किस किस को पता है कि ये लोगो क्या है? कोडक क्या करता है? कैमरा बनाता है? फोटो फिल्म्स? ओके. अच्छा, इस पे ही रहना. ओके. So this is, you know what they do. They've been known for photo films, right? ये लोगो किसी ने देखा है पहले कभी? ये लोगो क्या करता है? क्या करता है? आवाज नहीं आ रही. अब वो जो इंस्टेंट फोटोग्राफ्स होती थी ना, तस्वीर खींच के वहीं पे मीनार पाकिस्तान पे, कायद आज़म के मज़ार, बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद पे जो हुआ करती थी, तो ये करता था. इस तरह के कैमराज हुआ करते थे. ये सबको पता है. ये क्या करते थे? ये 3310 बनाते थे जो टूटता ही नहीं था. मतलब हम अपनी जवानी बचपन में बाइक पे फिरते हुए 3500 दफ़ा फ़ोन गिरा है. इधर बैटरी गई है, कवर उधर गया है, मेन बॉडी इधर है, जोड़ा फिर चल पड़ा. नया फ़ोन नहीं ले सकते थे उस टाइम पे. बड़ा मुश्किल था इससे जान छुड़ाना. ये लोगों किसी ने देखा पहले? व्हाट वाज ब्लैकबेरी नोन फॉर? सिक्योरिटी, प्राइवेसी. ओके. और इस तरह के फ़ोन हुआ करते थे इनके पहले. Can you tell me what is the common thing between these companies? They're not there anymore. But they used to be huge. Can you imagine? From 1940 to 1970, Kodak had 90% of the market share. और अब मेरा ख्याल किसी नए बंदे को, यहाँ को पुराने मेरी तरह के लोग बैठे हैं जिन्होंने शायद कोडक देखा होगा, तो they can recall के क्या करता है. मैं शायद अपने बच्चों को दिखाऊंगा तो they would never know what Polaroid is. So the lack of evolution, the lack of change and adaptation to the market is something that these brands did not do, and they were giants at one time. अब hardly लोगों को पता है. Nokia is still trying to come back. 3310 उन्होंने नई शक्ल का बनाया, लेकिन it's not the same. But in comparison to these two things, there are 2 other companies. Amazon is huge. लेकिन Amazon ने क्या किया? Amazon started off as a retailer of physical books.
Now they don't do that anymore. They've evolved. Another thing is Netflix. Netflix literally CDs किराए पे देते थे यार. जो हमारे भी गरीब मोहल्लों में इतनी दुकानें वीडियो कैसेट्स और CDs मिला करती थी DVDs. Netflix started from there, but they evolved, and that is why they became the giants. मेरे ख्याल इस वक्त जितना स्क्रीन टाइम Netflix के पास है किसी के पास भी नहीं है. So from here, इसमें क्या common है? The adaptation. So the radical reframe what they've thought about themselves and they've adapted to the market changes. So while preparing for the session, I came up with this very interesting line. Success is the willingness to evolve. Only the willingness. But it doesn't start with the actual process of a completed evolution cycle. Even the willingness and the realization कि यार change करना है. So that is from where it all starts. So moving forward, I was looking at a model which is the Kubler-Ross model, developed in 1969. इन्होंने क्या किया? They broke up the process of evolution या adaptation, the radical reframe into different stages. So this is what we're going to talk about today. क्योंकि हम सब लोग एक काम कर रहे होते हैं और अपने फ्लो में बड़ा बेहतरीन कर रहे थे क्योंकि हम जो करते हैं उसमें हम जीते हैं. तभी तो हम वो कर रहे हैं, हमें लगता है बेस्ट है. क्योंकि जो मैंने कर दिया ना यार, जो मैंने समोसे की वीडियो बना दी ना, वैसी कोई बना नहीं सकता फॉर एग्जांपल. और तस्वीर जो मैंने ले ली है. सो मेरा करियर सोशल मीडिया वाला स्टार्टेड ऑफ नॉट विद मेकिंग रील्स और वीडियोस. इट स्टार्टेड ऑफ विद फूड फोटोग्राफी, जो कि मुझे शौक हुआ. मैंने कैमरा खरीदा. मेरा एक दोस्त था, वेंट टू दुबई, और हम इब्ने बतूता मॉल में फिर रहे थे. मुझे बड़ा अभी तक याद है. दिस अ शॉप डिजिटल वाली, शरफ डीजी के नाम से. इट्स अ वेरी बिग शॉप ओवर देयर. तो मुझे कहता यार तू ऐसा कर, तू कैमरा ले ले. मैं कह यार मुझे कैमरा नहीं चाहिए. आई वाज़न्ट टू फोटोग्राफी बैक देन इवन. मैंने कहा मैं क्यों कैमरा ले लूँ यार, वो 2 लेंगे ना तो मुझे सस्ता मिलेगा, तू भी ले ले. सब कि भाई 70,000 रुपये का कैमरा था, वो साथ लेंस एंड ऑल, द वे दुबई पीपल डू डील्स एंड ऑल. मैंने उसके कहने पे कैमरा खरीद लिया. फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एक्चुअली. उसका मेरे ख्याल कैमरा शायद उसने अपने बच्चों की ईद वाले दिन को तस्वीरें ली होंगी, लेकिन माई करियर वेंट ऑन फ्रॉम देयर. सो आई वॉज टेकिंग फोटोग्राफ्स. और एक दिन ऐसा हुआ, आई हैड अ शॉक, क्योंकि द कंटेंट दैट आई वाज पोस्टिंग वो बड़ा अच्छा जा रहा था एक टाइम पे, लेकिन मैंने नोट किया कि यार माय कंटेंट इज नॉट गेटिंग द रीच. क्या रफड़ हुआ, क्या मसला हुआ? तो पहला जो स्टेज था वो मेरा शौक वाला स्टेज था कि मैं तस्वीरें इतनी प्यारी ले रहा हूँ, ऐसे चने उड़ रहे हैं और ऐसे हलवा पूरियाँ निकल रही हैं और बाइट बन रही है, एंड इट वाज गेटिंग अ वेरी गुड रीच. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 साल पहले रफली, मतलब ड्यूरिंग द कोविड, प्री कोविड एरा. और मैं कहा यार ये लोगों को तमीज़ नहीं है तस्वीरें देखने की. इससे प्यारी तस्वीरें क्या को ले सकता है नान चने की, कि ऐसे तरियाँ उड़ रही हैं और अंडा चने उसमें. सो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल. कि नहीं यार मेरा कंटेंट ठीक है, आई एम ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग विद मी. लोगों को तमीज़ नहीं है और लोग फॉलो नहीं कर रहे यार सही तरह, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह तस्वीरें ली जाती हैं. सो the process of evolution, the process of accepting a change goes through different steps. And I have been through the entire process, and I'll tell you how I evolved and how I overcame the issues that I was facing. So फिर तो कुछ अर्सा मैंने कुछ महीने डिनाइल में गुजारे. मैं कहा नहीं यार अली बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, और इनको तमीज़ नहीं है जो लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि कैसे फॉलो करना है, कैसे तस्वीर लेनी है, और सबसे अच्छी तस्वीरें तुम ले रहे हो, विदाउट रियलाइजिंग कि द लैंडस्केप वॉज चेंजिंग and the data consumption trends were changing. और मैं अपने उसी खुडे में ही नान चने खा के खुश था. So from there, मेरा फ्रस्ट्रेशन का मोड किक इन हुआ, जो हर किसी के साथ होता है, क्योंकि यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डूइंग कंसिडरिंग कि मैं तो जीता हूँ, मैं तो इतनी प्यारी तस्वीरें लेता हूँ, मैंने तो फलाने नान चने, फलानी निहारियाँ, फलाने पोटे कलेजी. आई एम रियली ग्लैड पोटे कलेजी भी उन्होंने बात की, क्योंकि पोटे कलेजी इज़ अ वेरी अंडररेटेड फूड आइटम और को इतनी इज्जत नहीं मिलती उसको खाने की दुनिया में, लेकिन आई एम ग्लैड क्या स्टेज पे उसका जिक्र हो गया. सो द फ्रस्ट्रेशन किक्ड इन एंड आई वाज लाइक कि यार कुछ करना है, क्या करना है, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी. द रीजन आई एम सेइंग दिस कि आई हैव नेवर बीन एक्टिव ऑन यूट्यूब. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आई एम नॉट इन दिस टू मेक मनी, क्योंकि जिसने पैसा बनाना होता है फूड कंटेंट पे, वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाता है एंड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाता है, बीच में ऐड चलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे. सो आई वाज नेवर देयर, इट वाज मोर ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट. सो
if something is driven by passion, तो frustration ज़्यादा जल्दी उसके अंदर kick in हो जाती है. So the frustration kicked in, and I had to go back to the drawing board, और I had to think. और फिर मैं देख रहा था कि लोगों का content यार कोई मतलब अजीब व गरीब से कंटेंट आते हैं जो कि शायद मैं आवाज़ बंद करके देखूं तो ज़्यादा बेहतर लगेंगे. द काइंड ऑफ द वॉइस ओवर्स एंड द काइंड ऑफ कंटेंट एंड द प्लेसेस दैट आर बीइंग एक्सप्लोर्ड. मैं कहा अली साहब फिर आपने ना टाइम ज़ाया किया है. ये 20 साल लगाए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और आप मार्केटिंग करते फिर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं और यू नॉट गेटिंग एनीवेयर. सो लिटरली देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन अ फेज ऑफ डिप्रेशन कि यार मैं तो बड़ा चीता था लेकिन आई एम बिकम irrelevant. So that is, I think, the lowest point where you go जब आप किसी change process में से गुजर रहे होते हैं and you're so passionate about things. अभी इससे पहले वाली discussion में हम अभी सुन रहे थे कि the trainings and the projects are going on, so people can relate here. You're delivering projects, you're trying to do something, you're trying to bring a change and you're trying to do different, or people they don't engage वो follow ही नहीं कर रहे. So मेरा frustration के बाद जो depression time था वो मैं लिटरली मैंने सोचा कि यार मैं भी फिर ये हरकतें शुरू कर देता हूँ. मैं भी फिर फजूल किस्म के फ़नी ऑडियोज़ डाल के जिसका कोई खाने से लिंक नहीं है और मैं पोस्ट करना शुरू कर देता हूँ जिसमें पंजाबी जुगतें हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं और खाने चल रहे हैं. लेकिन आई डिसाइडेड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग. और मैंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? क्योंकि माई पोस्ट्स वर इनिशियली मोर इन द कैप्शन विद द पिक्चर अप ओवर देयर. So I never realized कि I was just catering to one type of audience जिनको पढ़ना है या जिनको देखना है. But there's a very huge audience जो कहती है कि यार बोल के सुना दो, टाइम नहीं है पढ़ने का. So that was a very huge segment that was being left and ignored by my side. और मैं बड़ा चीता बना हुआ था अपने ख्याल में क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता the attention span of things is in seconds now. मुझे अगर कोई वॉइस नोट भेज दे 2 मिनट का ऑन व्हाट्सएप तो मुझे कई दिन लग जाते हैं हिम्मत पूरी करने के लिए. यार ये मैं सुनूंगा, शुक्रिया व्हाट्सएप ने वो 2x कर दिया है और 3x कर दिया है. वो ज़्यादा वैसे चिपमंक्स की आवाज़ लगती है सुनते हुए, लेकिन 2 मिनट 4 मिनट के वॉइस नोट भेजना भी अब इज़ नॉट अ नॉर्म. मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल विद. तो हाउ वुड पीपल थिंक के जो वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी. सो सेकेंड्स में हमें जाना था और I had to stick to what I was doing. So experimentation came in, which I think is a part of everyone's evolution life cycle. Or experimentation is the main thing where you have a comparison, A and B comparison. आप चीज़ें करते हैं, आप सोचते हैं. So what I started doing was, I started doing videos of food, using the same eye, using the same angle, using the same skill set करना चाहिए क्योंकि भी self-taught था. I never learned photography from anywhere. तो मैंने सोचा कि यार वीडियोस करनी चाहिए. कुछ अर्सा देयर वाज अ डिटरिंग फैक्टर. मैं कहा यार मैं वीडियो उस दिन करूंगा जितनी अच्छी मैं तस्वीरें ले सकता हूँ. तो लोग कहते हैं यार बहुत अच्छी तस्वीरें होती हैं लेकिन कंटेंट तो हर कोई कर रहा है. लेकिन देयर अ फ्यू एडजस्टमेंट्स एंड देयर अ फ्यू काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस दैट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू जंप इनटू इट एंड सी हाउ इट गोज. सो एक्सपेरिमेंटेशन फेज किक्ड इन जिधर आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज एंड दैट वाज नॉट लॉन्ग अगो. मेरे ख्याल 1.5 साल पहले. सो 1.5 साल पहले आई हैड अ फॉलोइंग ऑफ अराउंड 4,000-5,000 लोग. मेहरबानी है कि वो तस्वीरें देख के भी फॉलो कर रहे थे उस टाइम पर, कैप्शन पढ़ पढ़ के. अल्हम्दुलिल्लाह द एक्सपेरिमेंट वेंट वेल. और उससे अगला स्टेज जो मेरा आया दैट वाज द डिसीजन. आई थॉट कि नहीं यार दिस इज समथिंग आई हैव टू स्टिक टू एंड विदाउट रियलाइजिंग. क्योंकि अगेन देखें देयर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स दैट आर इन आवर कंट्रोल. सो दैट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस is very important for us to understand कि what are the factors that we can influence on and what are the factors that influence us. मेरे केस में क्या था, मैं अपनी वीडियो अच्छी कर सकता था, मैं तस्वीरें अच्छी कर सकता था, मैं कंटेंट बेहतर कर सकता था, लेकिन I had absolutely no control on how Instagram algorithm changed over time. अब वो Instagram की मर्जी थी. They started pushing motion content, video content more. और एक पुश रील्स के लिए आया था. देयर वाज अ टाइम, इफ यू रिमेंबर, आई एम श्योर ये सब ने फेस देखा है. पहले होता था कि आप जब वीडियो पोस्ट करते थे सो यू हैड एन ऑप्शन कि इसको वीडियो करना है कि इसको रील करना है. और फिर इवेंचुअली एवरीथिंग गॉट मर्ज्ड इनटू वन थिंग एंड उन्होंने भी उसको रील करना शुरू कर दिया. एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बिकम सो पॉपुलर कि यूट्यूब को यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने पड़ गए और उन्होंने उसको भी मोनेटाइज कर दिया
कि प्लीज़ खुदा के लिए वो ऑडियंस हम मिस कर रहे हैं जो कम टाइम में कंटेंट देखना चाहते हैं. So there was a थोड़ी सी ऑफ स्टोरी. There was a person, he lives in Norway, a Pakistani. He's a fitness professional. वो पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने लाहौर आना था और कराची जाना था. तो उनका उन्होंने मुझे कहा कि यार यू गिव मी समबडी, आई एम गोइंग टू कराची. मैंने उनको यूट्यूब का लिंक दे दिया. 5 मिनट बाद मैसेज आ गया कि यार इतनी लंबी वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, गिव मी समथिंग क्विक एंड शॉर्ट. सो दैट एक्सपेरिमेंटेशन वर्कड. और उसके बाद इंटीग्रेशन थी, समथिंग दैट आई वर्कड ऑन. अपने कंटेंट में उसको इंटीग्रेट किया. आई विल कट इट शॉर्ट, वी ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. क्विकली आई विल शो यू नो दैट मॉडल, हाउ इट लुक्स लाइक. सो सबसे नीचे आपका डिप्रेशन है. वंस यूर आउट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटेशन, द ओनली वे इज टू गो अप. सो ओवरऑल मेरे ख्याल में द मैसेज ऑफ द डे इज अ क्वेश्चन दैट आई वुड लीव यू गाइज विद. यू हैव 2 choices. क्या choices हैं? Evolve or die. So the choice is yours. Thank you so much for listening to me. बहुत शुक्रिया.